Hello friends, welcome to our YouTube channel New AA Education. Friends, I hope that you and your family are well as healthy. Friends, in today's video means part 2, I will explain you about the science subject of class 5th of the chapter 1. Chapter name is plant reproduction. This is the part 2. In part 1, I have explained up to the checkpoint 1. So friends, get started with our first topic, that is dispersal of seeds. Before starting the video, I have a request from you to click on subscribe button select and subscribe our channel. And click on bell icon and select all options so that you can get all notification and no video will miss you. So friends, I am again going to explain the checkpoint 1. Answer in one word. Our first question is a gas necessary for all living beings. Answer air. Our second question is the leaves that provide food to the berry plant. Answer cotyledon. Cotyledon. You write this spelling by your own because there is no space. Our third question is this makes the seed coat soft for germination. Answer water. Water make the seed coat soft for germination. So let's get started with our today topic, that is dispersal of seeds. Plants are fixed to the ground and cannot move from one place to another. पौधे अपनी जगह पर फिक्स्ड रहते हैं और वे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं. If all the seeds fall and germinate near the parent plant, अगर सारा seeds गिर जाए और सारा बीज जर्मिनेट हो जाए पेरेंट प्लांट के नजदीक, they will not get enough amount of air, water and warmth for growth. वे पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी और गर्मी नहीं नहीं ले पाएंगे बढ़ने के लिए, नए पौधे में उगने के लिए. Therefore, it is necessary for them to grow away from the parent plant. इसीलिए यह महत्वपूर्ण लगता है कि पेरेंट प्लांट के हटकर नया पौधा जर्मिनेट हो. There are some natural agents that help scatter the seeds. यहाँ बहुत सा कुछ नेचुरल इवेंट है जो सीड को पेरेंट प्लांट से फैलाकर सीड को पेरेंट प्लांट से हटाकर दूसरी जगह ले जाता है. दिस एजेंट कैरी सीड्स और फ्रूट्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यह एजेंट्स पेरेंट प्लांट से सीड, बीज और फल को दूसरी जगह ले जाता है. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिस्पर्सल. यही दृश्य घटना प्रजनन कहलाती है. Our next topic is agent of dispersal. Our next topic is agents of seed dispersal. Dispersal is carried out by wind, water, animal and explosion of fruits. प्रजनन एक जगह से दूसरी जगह कैरी होता है हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, जानवरों के द्वारा और फल के फटने के द्वारा. The special structure of certain seeds and fruits help them in dispersal.
This special structure of certain seeds and fruit help them in dispersal. यही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर बीज को बीज को प्रजनन होने में मदद करती है. Our next topic is dispersal seeds by wind, यानी हवा के द्वारा पौधा कैसे प्रजनन होता है. Seeds of cotton, mustard, dandelion and hiptage are light and hairy. बीज जैसे रुई के, मडार और डैंडेलियन और हिप्टिज के बीज बहुत ही मुलायम और बाल वाले होते हैं. बाल जैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है. So they can be easily carried away by wind. इसीलिए वह बहुत ही आसानी से हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. The seeds of साइमोरी trees are winged. मतलब गुल्लर के बीज के पास पंख होते हैं. They spin through the air like mini helicopter. इसलिए वह मिनी हेलीकॉप्टर, छोटा हेलीकॉप्टर के द्वारा हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और वह प्रजनन कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से. Our next topic is dispersal of seeds by water. पानी से कैसे प्रजनन होता है. Plants which grow in water or near water bodies use water for the dispersal of their seeds. पौधा जो पानी में जन्म लेते हैं, पानी में प्रजनन करते हैं और या पानी के नजदीक प्रजनन करते हैं तो उसे पानी की जरूरत होती है अपने नए बीज को प्रजनन करने में. The lotus fruit has a spongy structure and the coconut has a fibrous outer covering. कमल के फल के पास स्पॉन्जी यानी मिठाई जैसा खाते स्पॉन्ज वैसा स्ट्रक्चर रहता है और कोकोनट के पास यानी नारियल के पास रेशेदार जैसा बाहर से दिखने में लगता है. These special features make them light and help the seeds float on water and move along distance. यही स्पेशल फीचर्स पौधे को हल्का बनाती है और बीज को हल्का बनाती है और उसे पानी में तैरने में मदद करती है और वह एक जगह से वह पेरेंट प्लांट से दूसरी जगह चले जाते हैं और उन्हें प्रजनन होने में मदद मिलती है. Our next topic is dispersal of seeds by animals. जानवरों से कैसे प्रजनन होता है. Human beings and animals eat fruits like apples, orange, cherries, mango, etc. जीव, मानव या जानवर बहुत सारे फल खाते हैं जैसे सेब, संतरा, चेरीज, आम इत्यादि. And throw away their seeds. और उसके बीज को बीग देते हैं. The seeds grow into a new plants if they get the suitable condition. बीज नया पौधा में बढ़ जाता है अगर वह पर्याप्त मात्रा में उसे सारा कुछ मिले जैसे एयर, वाटर एंड वार्मथ. The plant can only disperse by
if they get the in suitable condition, air, water, and warmth. Some seeds like bird oak and cockly bird means extentium have hooks or spines. कुछ बीज जैसे बर्ड रॉक और कॉकली बर्ड मीन्स एक्सेंथियम उसके पास पंखी जैसा रहते हैं, हुक्स रहते हैं. They get stuck to the fur, skin of animals, clothes of people and are carried away. वाह वे वे उनके पंख उनके केस उनके जो मुलायम वाला बाल होता है वह बहुत ही आसानी से जानवरों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. Birds swallow some seeds which come out unchanged in their dropping. पक्षी बहुत सारे बीज को निगल लेती है जो बाहर दूसरी चीज में बदल कर आ जाता है, तेजी से बहुत दूसरी चीज में बदल कर गिरने लगता है. Squirrels collect nuts and bury them to be used in winter. गिलहरी बादाम को इकट्ठा करके और उसे छिपा देती है ठंडा के उपयोग के लिए कि ठंडा आएगा तो हम उसे उपयोग करेंगे. उसे छिपा के रख देती ताकि कोई दूसरा जानवर उसे नहीं ले सके. They often forget them और वह हमेशा ही उसे भूल जाती है. कोई जो ही होता है वही सब कब याद रहता है. When the seeds get suitable condition, they grow into new plants. I have already told you that the seeds can only grow into new plants when they get suitable condition like air, water, and warmth. When the birds eat fruits, few seeds of fruits get stuck to their wings. जब पक्षी फल खाती है और कुछ फल के बीज को इधर उधर फेंक देती है, कुछ फल को बीज को इधर उधर अपने चोंच में रख के इधर उधर घूमने लगती है. When they rub their wings, जब वह अपने विक्स को रगड़ती है on the bark of trees, यानी पेड़ के डांड पर the seeds fall down. और जब वह अपनी चोंच को रगड़ी तो बीज तो गिर ही जाएगा, तो बीज गिर जाता है. Later on, these seeds grow into new plants. और कुछ दिन बाद अगर वह बीज को सुटेबल कंडीशन मिला तो ही वह नया प्लांट्स में डिस्पर्स कर सकती है. Our next topic is dispersal of seeds by explosion. यानी पौधे का प्रजनन कुछ भी चीज को फटने से. Some seeds like peas are enclosed in pods. कुछ बीज जैसे मटर वह बंद रहती है, वह फल्ली में बंद रहती है. Picture is also given here. The pea seeds, which burst open and explode when dry. वह फट जाती है जब वह सूख जाती है. वह खुलकर फट जाती है जब वो सूख जाती है. The force of explosion helps in scattering the seeds. यही फोर्स उसे दबाव डालती है एक्सप्लोशन होने में यानी फटने में और बिखर जाने में.
और सारे सीड्स, सारे बीज बिखर जाते हैं। अगर वह सारे मटर का बीज बिखर गए और वह सुटेबल कंडीशन को प्राप्त करे तो वह नए पौधे में बदल सकते हैं। Our next topic is growing plants from other parts of plant. पौधे को पौधों को दूसरे किसी पौधे के भाग से उगाना, नया पौधा को। Beside growing from seeds, new plants also grow from roots, stem and leaves of plant. पौधे को पौधे सिर्फ बीज से ही नहीं नए पौधे सिर्फ बीज से ही नहीं उगते हैं। वे नए पौधे जैसे किसी पौधे की जड़ से भी उगती है, तना से भी उगती है, पत्ती से भी उगती है। This process is known as vegetative propagation. In examination, it can come that what is called vegetative propagation. Then you can easily answer. Besides growing from seeds, new plants also grow from stems, leaves and other parts of the plants. This process is known as vegetative propagation. Our next topic is plants like bougainvillea, rose, hibiscus and sugarcane grow from cutting of stem. पौधा जैसे बोगनविलिया, गुलाब, गुड़हल और चीनी का गन्ना वो सभी तने के जैसे, अगर कोई तना को काट कर उसे रोप दिया तो वह नए पौधे में आ जाएंगे। It's come in new plant. Onion, potato and ginger are underground stem. प्याज, आलू और आदि, अदरक, ये सभी धरती के अंदर से उगते हैं, जो तना से उगते हैं। That can grow into new plants. तो वह नया पौधा में आ सकते हैं। Potato has buds called eyes. आलू के पास बड्स रहते हैं जो आइस कहलाते हैं, यानी आंख कहलाते हैं। These buds grow into new plants. यही बड्स नए पौधे में, यही कली नए पौधे में उग जाती है। The roots of sweet potato can grow into new plant. अलुआ आप लोग सुने ही होंगे। अलुआ का जड़ नए पौधे में हो जाती है। The leaves of Bryophyllums and Begonia give rise to new plants. Begonia and Bryophyllum ये सभी पत्ती से नए पौधे में आते हैं। पत्ती की मदद से ये पौधे अपने नए पौधे में आते हैं। These potatoes buds are known as the potato's eyes. This is the leaf of Bryophyllum. By these leaves, Bryophyllums grow into new plants. This is the root of sweet potato. This is the stem of rose. By this stem, plants can grow into new plants. See, this is the cutting stem, and here it is, and in this plant the root has come. Some plants like mushroom and molds do not produce flower.
कुछ पौधे जैसे कुकुरमुत्ता और फफूंदी, ये सभी पौधे फूल नहीं देते हैं. This is the picture of Kukarmutta and this is the picture of Fafundi. Means this is the picture of mushroom and this is the picture of molds. They are called non-flowering plant. इसलिए वह बिना पौध non-flowering plants कहलाते हैं. They reproduce with the help of spores. वह प्रजनन लेती, वो नए पौधे में प्रजनन जब लेती, वो नए पौधे में अपनी स्पोर्स की मदद से प्रजनन लेती है. जो जीवाणु जो बढ़कर एक नया प्राणी हो जाता है जिसे बीजाणु कहते हैं, उसी से या अपने नए पौधे में आती है. The spores are small. बीजाणु छोटा होता है. राउंड एंड लाइट स्ट्रक्चर, गोल और हल्का सा स्ट्रक्चर वाला होता है. They can be dispersed easily in various directions to give rise to new plants. वह बहुत ही आसानी से नए पौधे में डिस्पर्स हो सकती है और बहुत सारे डायरेक्शन में जाकर, दिशा में जाकर वो अपनी नए पौधे बना सकती है. Our next topic, and it is last topic, that is crops and vegetables. Plants of one kind grow on a large area during a particular season is called a crop. पौधा जो एक ही प्रकार का होता है और वह बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े जगह में उगाया जाता है और जो मौसम में जो पौधे उगते हैं वही पौधे उगाए जाते हैं, तो वही प्रोसेस को क्रॉप कहते हैं. आप लोग समझ गए होंगे. Different crops are grown in different season. बहुत सारे खेती बहुत सारे सीजन में होते हैं. Now we will discuss our rabi crops. Wheat and barley are grown in winter from November to April. These crops are called rabi crops. Wheat और barley ठंड के मौसम में होती है और महीना रहता है नवंबर टू अप्रैल. जो खेती नवंबर से अप्रैल के महीने में किया जाता है, यानी ठंड के महीने में किया जाता है, उसे हम रेवी क्रॉप्स कहते हैं. This is the very important point. You have to learn this point. Friends, here it is given. Now our next topic is Kharif crops. Rice, maize, jawar, bajra, jute and cotton are grown in summer from June to October. चावल, गेहूं, जवार, बाजरा, जूट एंड कॉटन के पौधे गर्मी के मौसम में उगते हैं. महीना रहता है जून टू अक्टूबर. The question can come in your examination that what is called Kharif crop. Then the answer is rice. When you have to also give the example in examination. The crops which grow in summer season from the month of June to October, like rice, maize, jawar, bajra, jute, etc. These
crops are known as kharif crops. Vegetables like cabbage, cauliflowers, radish, bean and pea are grown in winter. सब्जी जैसे कैबेज, बंदा गोभी, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, रेडिश, बीन और मटर इत्यादि ये सभी ठंड के मौसम में होते हैं. While brinjal, pumpkin and gourd are grown in winter. लेकिन बैगन, पंपकिन यानी लौकी, कद्दू एंड गोर्ड आर ग्रोन इन समर. लेकिन ब्रिंजाल, पंपकिन और गोर्ड ये गर्मी के मौसम में होते हैं. Different plants need different types of climates, seasons and soils. बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे को भिन्न भिन्न प्रकार के क्लाइमेट, सीजन्स और मिट्टी मिलनी चाहिए, तो ही वह पौधे बड़े हो सकते हैं. Knowing suitable condition for germination of different types of seeds helps in growing better crops. जानते हुए भी हमें पौधे को सुटेबल कंडीशन देना चाहिए. अगर हमें अच्छा क्रॉप उगाना है, अच्छा खेती उगाना है, तो हमें अच्छी तरह से इस पौधे को पर्याप्त मात्रा में सारा कुछ देना चाहिए. ना ही कुछ भी चीज को ज्यादा देना चाहिए, ना ही कुछ भी चीज को कम देना चाहिए. Rice and jute grown in clayey soil which holds plenty of water. चावल और जूट ये सभी चिकनी मिट्टी में होती है जो अधिक मात्रा में पानी सोखता है. इसीलिए चावल और जूट चिकनी मिट्टी में होगा तो ही वह अच्छा फसल आएगी, क्योंकि चावल और जूट को चिकनी मिट्टी की जरूरत होती है और चिकनी मिट्टी में पानी ज्यादा होता है, पानी की ज्यादा जरूरत होती है. जहाँ पे पानी ज्यादा होगा वहीं पे चावल और जूट होगा. That is why more rice is grown in and around West Bengal. इसीलिए बहुत चावल वेस्ट बंगाल के किनारे रोपे जाते हैं. Similarly, wheat is grown in loamy and irrigated soil of Punjab and उत्तर प्रदेश. यही ठीक सेम प्रकार के गेहूं लोमी सॉइल में होते हैं. लोमी सॉइल में टुमट्टी मिट्टी में होते हैं और वह सिंचाई वाले मिट्टी में होते हैं और वह पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्य में होते हैं ज्यादातर. Jowar and bajra are grown in sandy soil like that of Rajasthan. ज्वार और बाजरा सैंडी सॉइल यानी रेतीली मिट्टी पर होती है, जैसे ये राजस्थान में होते हैं. Cotton is grown in black soil of central and western India. रुई काली मिट्टी में होती है और वह सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में होती है. Tea plants need moist soil and grow on slopes, hilly areas like Assam, Nilgiri Hills and Darjeeling. चाय के पौधे नमी वाली जमीन में होती है और यह सीढ़ीदार वाली यानी ढलाव वाली जमीन में होती है.
जो और हिली एरिया भी रहना चाहिए। और यह चाय की खेती ज्यादातर असम, नीलगिरी हिल्स और दार्जिलिंग में की जाती है। मेज ग्रोस वेल इन ड्राई सॉइल। मक्का अच्छा से उग पाता है सूखा मिट्टी में ऑफ द प्लेन और हिल्स। प्लेन्स एरिया और हिल्स एरिया में उगती है। ओनियन एंड ग्राउंडनट नीड वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल। प्याज और ग्राउंडनट उसे भींगा हुआ वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल मिलना चाहिए, यानी रेतीली वाली सॉइल मिलना चाहिए। तो ही वह तो ही वह पौधा अच्छा से ओनियन और ग्राउंडनट अच्छा से विकास कर पाएंगे। विकास कोकोनट ट्रीज ग्रोन इन कोस्टल एरियाज लाइक केरला एंड गोवा। नारियल का पौधा कोस्टल एरिया में होती है, यानी तटीय एरिया में होती है, जैसे केरला और गोवा में कोकोनट। केरला और गोवा में नारियल की खेती ज्यादातर की जाती है। Our next topic is growing crops. The practice of growing crops plants on a large scale is called agriculture. पौधे को उगाने का पौधे को उगाने बहुत ही लंबा जगह पे पौधे को उगाने का नियम वो एग्रीकल्चर कहते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन दैट व्हाट इज कॉल्ड agriculture, then you can easily answer that the practice of growing crop plants on a large scale is called agriculture. This has been this has to be done to feed the entire population of a country. यह इसलिए किया जाता है कि सारे सारे कंट्री के सारे लोग फीड हो जाए, यानी डर जाए। A good crop adds to the wealth of a country. अच्छा पौधा उग सकता है अच्छा ही कंट्री में। Good and healthy crops can be produced by अच्छा और स्वस्थ खेती हो सकता है अगर हम ये नियमों का नीचे दिए गए नियमों का पालन करेंगे, तो ही हमारा खेती अच्छा और स्वस्थदार हो सकता है। Using healthy and ripe seeds for sowing. हमें पका हुआ बीज और पका हुआ बीज यूज करेंगे तो ही हमारा फसल अच्छा हो सकता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है preparing the soil in the right manner, यानी मिट्टी को बहुत अच्छी ढंग से तैयार करना। हमारा थर्ड पॉइंट है एडिंग द राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। सही मात्रा में एडिंग द राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। सही मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में हम फर्टिलाइजर खाद डालेंगे तो ही हमारा फसल अच्छा हो पाएगा। इट इंक्रीज द क्रॉप प्रोड्यूसन, यह हमारे खेती को बढ़ाता है। फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, सुपर फॉस्फेट, ammonium sulfate and nitrate can be added to the soil. फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, सुपर फॉस्फेट, एमोनियम सल्फेट एंड निट्रेट, ये सभी अगर हम अपनी मिट्टी में जोड़ेंगे
तो मिट्टी में डालेंगे तो ही हमारा फसल अच्छा हो सकता है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज हार्मफुल टू द सॉइल एज वेल एज द क्रॉप। ज्यादा मात्रा में अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करते हैं तो वह हमारी मिट्टी को भी हानि पहुंचाएगा और हमारी क्रॉप्स को भी हानि पहुंचाएगा। इरिगेटिंग द सॉइल एट अ प्रॉपर टाइम। खेत में सिंचाई 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 हमें समय समय पर करना चाहिए। यूजिंग पेस्टिसाइड्स इन राइट क्वांटिटी एंड राइट ऑफ क्वालिटी, यानी हमें कीटनाशक कीटनाशक दवा अच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी का लेना चाहिए, यानी पर्याप्त मात्रा में क्वांटिटी डालना चाहिए कीटनाशक दवा का पर्याप्त उपयोग करना चाहिए। Here is new word. In new word, it is written population means total number of people living in an area. Manure, decaying remains of plants and animals added to soil for a good crop. Fertilizer, chemical added to make plants grow better. Pesticide, chemical that kills pests. I hope that you can understand. Proper spray of pesticides protect the crops from pests like locusts, grasshopper and caterpillars. अगर हम सही मात्रा में कीटनाशक दवा का उपयोग करेंगे तो हमारा खेती अच्छा रहेगा। हमारे खेती ये टिड्डा और काटीपिलर्स, ग्रास ऊपर, ये सभी से हमारा खेती सुरक्षित रहेगा अगर हम सही मात्रा में उपयोग करेंगे तो। Again, using too much of pesticides is harmful to the soil, crops and our health. ज्यादा मात्रा में अगर हम कीटनाशक दवा का उपयोग करेंगे तो वह हमारे सॉइल की भी, मिट्टी के लिए भी हार्मफुल है, हमारे खेती के लिए भी हार्मफुल है और हमारे शरीर को भी हार्मफुल पहुंचाता है। Our next topic is protection of crops and storage of seeds, यानी पौधे क्रॉप्स को कैसे बचाए और कितना मात्रा में सीड्स को स्टोर करे। The crops need to be protected against grazing animals like crows, goats, etc. हमारा खेती बचना चाहिए जानवरों को चरने से, जैसे जानवरों का नाम काउस, गोट्स और इत्यादि। ये सभी को हमारी खेती को चरने से रोकना चाहिए। Bigger animals can be kept away by proper fencing of farmer. बहुत सारे बड़े बड़े एनिमल्स वो हमारे, अगर किसान घेराबंदी लगा देंगे खेत की चारों साइड तो बड़े बड़े जानवर नहीं आ पाएंगे। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, फसल कटाई के बाद ग्रेन्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर एंड पेस्ट सच एज फंगी, यानी अनाज सुरक्षित रहना चाहिए जैसे फंगी से, मॉइस्चर यानी नमी हमारी ग्रेन्स में रहना चाहिए, इससे हमें बचाना होगा। पेस्ट एनिमल जैसे बचाना होगा, फंगी से, मोल्स यानी छुछुंदर से, रैट्स यानी चूहा से, बर्ड्स, स्क्वायरल एंड इंसेक्ट। Therefore, they should be stored in airtight and sealed container. इसीलिए हमें इसे बहुत ही वायु रोधक वाले जगह पे हमें इसको रखना चाहिए और बंद
बंद कमरा में, बंद सील, बंद कंटेनर में रखना चाहिए. Friends, now we will go to our new word, that is pest. Any organism which is harmful to crops. Example, insect, birds, rat, etc. यानी कोई भी जीव जो हमारे खेती के लिए हार्म हो, जैसे कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, चूहा इत्यादि. हार्वेस्टिंग, कटिंग द राइप क्रॉप्स, यानी हार्वेस्टिंग, जब हमारी फसल कटाई होती है इसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं. नाउ वी विल गो टू आवर checkpoint 2. In checkpoint 2, it is written that seeds dispersal by water. Then you can easily answer. You have to write the name of the question. Seed dispersal by water. I have already told you. Seed dispersal by water are lotus, coconut. You have to write only one name. You can write lotus or coconut. Our second question is seed dispersal by air. Answer cotton, madar, dandelion and hippage. You can write only one. I have told many. A chemical fertilizer. You can write like urea, sulfur, nitrate, etc. You can write in only one. Crops grown during winter season. I have already told that crops grown in winter season are known as rabi crops. Now we will go in our knowledge desk. Here, have you ever heard of scarecrow? क्या आप कभी scarecrow के बारे में सुने हैं? scarecrow यानी दृश्य सदृश्य होना. बीजुका, बीजुका आप कभी देखे हैं या सुने हैं? काक भगौड़ा. By name you can easily answer that काक भगौड़ा. काक means कौवा को भगाने वाला. The exact Hindi meaning that is bijuka. Farmers make it to scare birds away from their crop fields. किसान इसको इसीलिए बनाते हैं कि हमारा खेती अच्छा रहे और हमारे खेती को नुकसान ना पहुंचे पक्षी जानवरों से. Scarecrow is made of hay and it resembles a human figures. Scarecrow इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसको एक आदमी के जैसा बनाया जाता है ताकि कोई भी जानवर इस आदमी समझ के इससे डरे और हमारे फसल को नुकसान ना पहुंचाए. Our next knowledge desk, that is here. Growing crops in fields is called cultivation. खेती करना, growing crops in fields is called cultivation. You have to learn this point because this point is very important. Our next knowledge desk, that is on a large scale, apples and oranges are grown by a process of grafting. Friends, thanks for watching video. If you are new on my channel, then press on bell icon and then click on subscribe button and subscribe our channel. If you like this video, then click on like button and tell in the comment box about this video and share this video with more and more people so that all people can get knowledge about this video. Thank you. We will meet in another video. Jai Hind, Bande Matram. Friends, thanks for watching video. If you are new on my channel, then
click on red icon and subscribe our channel. If you like this video, then click on like button and comment in the comment box about this video and share this video more and more with many peoples so that all the peoples can understand about this video and all the people can get knowledge about this video. Thanks you. We will meet in another video.